لوگ التت فورٹ آئے ہیں اور یہ راستہ ہے التت فورٹ جانے کا. کتنا خوبصورت ہریالی ہے اور یہ خرگوش ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بھائی. دیکھیے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پرندے ہیں. ایسی خوبصورت آواز ہیں ان پرندوں کی, خاموشی ہر طرف. ماشاءاللہ سکون ہی سکون ہے ہر طرف. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں التت فورٹ کی طرف, جس کی تاریخ مقامی گائیڈ سے جانتے ہیں. التت فورٹ تقریباً 7606 فٹ بلندی پر ہنزا میں واقع ہے. مائی نیم از محمد جاوید. میں یہاں التت فورٹ میں ایز اے گائیڈ ہوں, جو کوشش کر لوں گا میں ہنزا کی پری ہسٹری بتا دوں اور فورٹ کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دوں. آپ نے لفظ ہنزا سنا ہے, جو اصل تلفظ ہے ہنزو ہے. آپ نے گوانزو, مانگزو, ہانگزو سنا ہوگا, چائنا میں شہروں کے نام ہیں. یہ ہنزو تھا, ہن اسٹیٹ. یہاں چین سے تقریباً 400 سال قبل مسیح ہن ڈائنسٹی کے لوگ آئے, انہوں نے ہنزا آباد کیا. بعد میں رشین آئے, سنٹرل ایشین آئے, تبت کے لوگ آئے, چائنیز آئے, مختلف قبائل مختلف جگہوں سے آتے رہے. ہنزا یہاں سے پھیلتے پھیلتے واخان, تاشقرغن, یارقن تک پھیلا. Hunza was battlefield of three big empires, Russian, Chinese, Indian empire, and gateway of Silk Route between China and subcontinent. Silk Route کی تاریخ یہاں 3000 سال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو ویلکم سر. کریم میرا نام ہے اور یہ التت فورٹ سر. گلگت بلتستان کے اندر جو سب سے قدیم فورٹ ہے وہ التت فورٹ ہے, جس کی زبانی تاریخ ہم 900 سال بتاتے ہیں, لیکن اس کی جو کاربن ڈیٹنگ جو انالیسس رپورٹ ہے اس کے مطابق 800 سال ہے سر. التے بلتے دو تبت کے الفاظ ہیں جس کے معنی اس طرف اس طرف, اپ اینڈ ڈاؤن سر, لوور اپر. التے لوور اور بلتے اپر. التے بگڑتے بگڑتے اس گاؤں کا نام التت ہے اور بلتے بگڑتے بگڑتے اس گاؤں کا نام بلتت, nowadays called کریم آباد سے. کوئی زبانی تاریخ کے مطابق 900 سال پہلے ہنزا کی شاہی فیملی میں سے ایک شہزادے نے شیگر کی ایک خاتون جس کا نام شی خاتون تھا بیاہ کر کے تھرو دا ہسپر گلیشیئر. یہ پاکستان کا لمبا ترین گلیشیئر جس سے بیافو ہسپر کے نام سے مشہور ہے. ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جا کے ہسپر گلیشیئر جا کے سکردو اور شیگر کو جا کے مل جاتا ہے. یہ رینجز جو ہے وہ پراپروم رینجز ہیں اور کیٹو تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. شیگر کو جا کے مل جاتا ہے. یہ پاکستان کا لمبا ترین گلیشیئر جسے بیافو ہسپر کے نام سے مشہور ہے. 130 باراتیوں کی شکل میں جب اس ہنزا کے شاہی فیملی کے اندر اس خاتون کو لایا گیا تو اس زمانے میں غربت کی انتہا تھی. کھانے کے لحاظ سے, پہننے کے لحاظ سے, نہ سر پہ چھت. پھر اس خاتون نے اپنے ابو کو شکایتی پیغام بھیجا. ان باراتیوں میں ان کا منہ بولا بھائی جس کا نام عبدل خان تھا, یہ شکایت کی کہ جس رائل فیملی کے اندر آپ نے میری بیاہ کروایا ہے, ایک چھوٹی سی ریاست ہے, غربت کا عالم ہے, کم از کم میرے لیے ایک اچھا مکان تعمیر کی جائے. پھر ان کے ساتھ جو باراتی آئے تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جو باراتی آپ کے ساتھ میں نے بھیجا ہے وہ مختلف ٹریڈ کے لوگ ہیں جو آپ کے لیے ایک اچھا مکان بنائیں گے. تو بیسکلی ان میں موسٹلی ورک کارورز, کارپینٹرز, میسنز, وہ یہاں کے قدیم جو بستیاں ہیں الانگ دا کیچ وی کال دم گنش, وہاں پہ رہے. بلتت جسے آج کل کریم آباد کہا جاتا ہے وہاں پہ. پھر یہ التت یہاں پہ رہے کئی عرصے تک. پھر اس خاتون کے لیے ایز اے ڈاوری, ایز اے گفٹ یہ مکان بنایا گیا. یس سر. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مختلف ادوار میں نواب آئے پھر انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کرتے رہے. لاسٹ میں التت فورٹ وجود میں آیا. ہنزا کی تاریخ کے اندر ایک ہی راجہ کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. ان کے دوسرے بھائی ہوتے تھے تو چائنا یارقن سائڈ پہ ایگزائل کرتے تھے یا راستے میں قتل. کوئی 600 سال پہلے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف بغاوت کر لی. اس نے چاہا کہ ریاست کا نظام اپنے ہاتھ میں لے. شاہی دستور کے مطابق کنگشپ بڑے کو مل جاتا. بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ یہ شورشیں نہ کروائیں, لیکن وہ باز نہیں آیا. پھر بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہلے کمرے میں اسے زندہ چنایا, جو آپ کو دکھا دیتا ہوں.
बाकी आपके ये जो आप सामने बात कर रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुस्लिम्स थे या ये बुद्धिस्ट थे जिनकी आप बात कर रहे मैं हैं? सब बताऊंगा सर। पहले अगर मज़हब के हवाले से सबसे पहले बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, देन इस्लाम आए हुए कोई 700 साल हम बयान करते हैं थ्रू द बदख्शां से कुछ वली बुज़ुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में मदद की सर। आ जाए सर। और आपने बताया ये डॉरी में बनाया गया है। ओके मैम प्लीज़। वहाँ पे आप सारे रुक जाए, रुके हुए आ जाए आप सारे। नाज़रीन हम अल्तित फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। शाद भाई का तो टिकट फ्री कर दिया है। फोर्ट में आ गए। जब ये चले जाएंगे काफ़ी इसके बाद आप अंधेरा है यहाँ पर और आवाज़ें गूंज रही होंगी। ये छोटे छोटे से दरवाजे हैं फोर्ट के अंदर। ये देखिए इस जगह पे वॉच योर हेड प्लीज। ये वो दीवार है जिसका बता रहे थे अभी कि अपने भाई को जिंदा चिनवा दिया था। ये वो अभी दीवार है। बताएंगे ना खुद ही सबको अलग अलग थोड़ी बताएंगे। सबर कर लें शायद। अच्छा वॉच योर हेड प्लीज सर। आगे आ जाओ आसिम, रास्ते से हट जाओ। यूनुस पिलर देख, पिलर किस तरीके से रोका है। तो इन एडिशन टू डाउन साइड हिस्ट्री, ये वो जगह है जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जिंदा उसे चुनाया था। इक़्तिदार की जंग बड़ा भी चाह रहा था और कि इस इलाके का वो नवाब बने, छोटा भी। फिर बड़े ने छोटे को यहाँ पे उसे ज़िंदा चुनाया गया सर। बेसिकली उसे बचपन में फ्लूट बजाने का ज़्यादा शौकीन था। उसे पता चला कि मेरा भाई जो है वो मुझे कत्ल करवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। फिर वो भाग के दूसरे स्टेट पे चला गया सर, नगर पहाड़ की दामन पे जाके फिर वो फ्लूट बजाने लगा। तो उसको उनके फिंगर्स, उसे पता चला कि ये मेरे भाई के फिंगर्स हो सकते हैं। बुला फिसला के ला के फिर उन्होंने ये हरकत की सर। इस्लाम से पहले यहाँ पे ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे, स्टोर करते थे। दिस इज वाइन पोर्ट, वाइन सेलर ये जगह है। वाइल ये छोटा सा जेल बगावत वाली कहानी। ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे उनको ऊपर से गिराया फॉर द टाइम बीइंग पनिशमेंट। यस सर, शायद अंदर मौजूद है जी है। इसका एक्सप्लोशन के वक्त इसका फ्रंट वॉल गिर चुका था। ये रिकंस्ट्रक्ट की गई है, अंदर हड्डियाँ एज इट इज़ है सर। वाइल ने ये छोटी खिड़कियाँ इसलिए हैं कि सर हम दो स्टेट दरिया के उस तरफ नगेद, ये हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 73-74 तक 8 छोटी रियासतें इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करती थी। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में है। जिस तरह उन्होंने सारे स्टेट्स को सेंट्रलाइज किया था, बावलपुर, कलाबाग, दीर, चित्राल, तो इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 8 स्टेट्स भी शामिल थे। उनमें ये हुंजा एकरास नगर से 1891 में हम दो स्टेट आपस में लड़ते थे। जसफानाती फादी डोमिनेंसी वाली कहानी है। यहाँ का नवाब अपने गार्ड डिप्लॉय करते थे यहाँ पे ताकि वो बाहर का नज़ारा कर सके। रिगार्डिंग रेस्टोरेशन आप देख लें सर, वाइट पिलर्स आर बेसिकली न्यू इंडक्शन, वहाँ ब्लैक पिलर इज टोटली 1100 साल पुराने। तो आपने एक सवाल किया कि सर दरवाजे क्यों छोटे हैं, तो बेसिकली इसके 3 पर। 1 इज डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पांव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी हो। अच्छा दूसरा है कि ट्रेडिशनली वी आर मेकिंग फायरप्लेस सेंटर ऑफ द हाउस व्हाइल द कंस्ट्रक्शन। आप देख ले मड, स्टोन, वुड का बना हुआ स्केल्टन। थोड़ा सा हम आग जलाते हैं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लो, डोर फ्रेम शॉर्ट। थर्ड यही है कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आए, एहतराम मनाएं सर। आ जाए आप चाहो इधर आ जाए सर, फ्रेम के अंदर। एक मिनट आ जा भाई। ये सब घर पुराने हैं, 1,000 साल पुराने मिट्टी के घर बने हुए हैं। ये रह गया बस। ये वो कमरे हैं जहाँ शाही मेहमान ब्रिटिश आते थे तो उनको ठहराया जाता था। इस तरह के ये यहाँ पे कमरे हैं।
समझ लीजिए कि शाही मेहमान खाना था ये। एक कमरा ये था। अब आगे आ जाएं तो देखते हैं तो यार आगे उधर भी जाना है, निकलना इसमें यार, फिर वो टाइम निकल जाएगा, वो फायदा। एक कमरा ये है जहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीर लगाई हुई हैं लोगों ने। इसकी छत देखें तो खूबसूरत लकड़ी कैसे बनाई गई है और फर्श भी लकड़ी का ही है। ये मस्जिद है जो 400 साल पुरानी। ये अंदर से देखें, ये मस्जिद इतनी छोटी मस्जिद कैसे हो सकती है यार? नहीं सकता। ज़माने में जिसे शमनिज़म कहते थे या शमान हम लोग के लिए बिचन कहते हैं, जो पास प्रेजेंट फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन उन पे ज़्यादा बिलीव किया जाता था। जैसे आप इस्लामाबाद से आते हैं तो टेक्सला इसका हब हुआ करता था, स्वाद तो उनका थाई था। एलांगा के आप आते हैं तो जहाँ आजकल दियामर बादशाह डैम, नीचे रोक्स के ऊपर बुरदा ऑफ इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे है, गिरगिट कारगान नाला के अंदर हम आते हैं तो एलांगा के नीचे रोक्स के ऊपर भी बुरदा ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को। यहीं से डालते थे वो बंदे को अंदर। ये छोटा सा जेल बगावत वाली कहानी, ऐसे बंदे जो आयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे, they bring them over here and push them down and lastly close the door frame से। अगर आपके ग्रुप में कोई बगावत कर रहा है तो बताएं सर। एक ही है हमारे ग्रुप में। हाँ यूनुस आ गया। एक ही है हमारे ग्रुप। यूनुस आ जाओ। राशि बहना छोड़ दी। तो ये सर बेसिकली फ्रांसिस का कमरा हुआ करता था अर्ली डेज में। लेकिन हम जो कल्चरली फेस्टिविटीज़ करते हैं, त्योहारें मनाते हैं, पंजाब के अंदर बसंत मनाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सोइंग और हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल। सोइंग का फेस्टिवल को हम बो कहते हैं। बो मीन्स सीड एंड फो मीन्स टू थ्रो। 22 फरवरी को नवाब घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए इंट्रेंस तक। इसके बाद वो यहाँ पे मौज़ीन के साथ ट्रेडिशनल डांस, ऊपर छत पे इधर से, फिर 2 बजे के बाद नीचे से घोड़ों की शक्ल में एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो करवाते थे, जिसको हम बो फो कहते हैं। बो मीन्स सीड एंड फो मीन्स टू थ्रो। और हिस्ट्री के हवाले से 1365 से 1365 टू ऑनवर्ड ये सेलिब्रेशन हम आज भी इसी रूप से इनिशिएट लेते हैं, जिसकी तारीख यहाँ दी हुई है। ये फायर प्लेस, थ्रोइंग गार्बेज टू डाउनसाइड रिवर, किड्स स्लीपिंग एरिया, ये स्टोरेज है सर। और दिस इज अमेजिंग सनडायल सर, घड़ी है सर, उस जमाने की घड़ी जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे। इसके पीछे एक्सक्यूशन पॉइंट बगावत वाली कहानी की, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं आते थे पीछे से गिराए जाते थे। ये 1000 साल पुराना बस्ती है नीचे, इसके इर्द गिर्द इस तरह से सारे वॉच टावर को खत्म किया। ये एक ही वॉच टावर रह गई है। वैली के इर्द गिर्द आप देख लें, वो कौन सा डेस्क का मेरे फिंगर तकरीबन यस सर ईरान पीक, गोल्डन पीक सर। तो नाज़रीन, यहाँ से हमारे अल्तिफ फोर्ट का सफ़र तमाम होता है। अब इंशाल्लाह आइंदा किसी अच्छी जगह पे फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।